So makes this holiday even more special. As India celebrates 75 years of independence, the Indian Army is a powerful symbol of India's glorious past and its strong cultural, military, and economic identity, justified by our rich symbolic traditions. The Army knows how to honor our great hearts. These are the awardees of the Sela Medal who have dedicated themselves with all their might in service of the nation. As India moves confidently towards the future, the Indian Army plays a vital role in this march. The all the men who participate in this parade represent each and every soldier of the Indian Army, those who are posted all across the length and breadth of the country in the toughest of conditions, in the remotest of posts. And the message for each of you emphasize around is this: no matter where you are, we honor personality. Esta palabra es el paso de la Chile Vaisana Provoca, llega a ver solo. Para el comando de ese chapón, General salute! Salami! Just! Bread! Butter! Just! Bread! Wait! Up! Air Chief Marshal V.R. Chowdhury, Paramedic Sevaman, अतिरिक्त सेवावन, वायुसेना भारतीय सेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया था। उसी 15 की याद में हर वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है, न केवल दिल्ली में, बल्कि हर से प्रियंका परेड मैदान पर इसका आगमन हो रहा है, बल्कि संपूर्ण देश में अलग अलग जगहों पर सेना दिवस पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये विशेष अवसर है 75 वर्षों को पीछे मुड़कर देखने का, जहाँ भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और साहस की नवीनतम नए अध्याय जोड़े।
parade, the enthusiasm of the audience adding warmth to the morning. The parade plays in readiness for their Chief General Manoj Nalabani. The protocols of the pandemic have been strictly followed here, as you can see. Everyone has been advised to maintain social distancing and to wear a mask, and sanitizers have been provided all around the grounds. The army days are going to salute the valiant soldiers who have sacrificed their lives to protect our country and to celebrate the honor and transcendent spirit of every single Indian soldier who fights regardless. Living up to the motto, fight to the win. General salute! Salami! Just! Parade! Punjab! Just! Parade! Wait! Up! Army Day is celebrated on 15th of January every year. So it was on this day, in 1948, that Lieutenant General K.M. Cariappa took over as the first Indian Commander-in-Chief of the great Indian Army. A great sense of pride in the country and its valiant soldiers binds the nation together, and that sense of pride shines on every face there. Men, women, and children. Today the Army rededicates itself to become a part of the war-winning team. A smartly turned out parade here. CIS जो प्रतीक है भारतीय सेना के स्वर्णिम इतिहास का, जो गौरव देता है भारतीय सैनिकों के स्वर्ण की, स्वाभिमान की, त्याग की, क्योंकि त्याग नहीं होता यह तो जीवन में विनाश नहीं होता, मानव नहीं रह जाता, मानव का इतिहास नहीं होता। ऊंचा भवन, प्रशासन, सदैव तत्पर, यह है भारतीय सेना की। को याद करने का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना साहस नहीं काम लिया, अपने काम की परवाह न करते हुए देश के संविधान की रक्षा की। क्रमबद्ध रूप से आयोजन होता हुआ सम्मान्य अतिथियों का सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जिनके द्वारा सैनिक परेड का निरीक्षण किया जाएगा और अन्य कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।
गति से नहीं जीते जाते हैं। जीत उसकी होती है जो यह सोचता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। पर एक कमांडर का उठा हुआ हर कदम इस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही। परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है। As he was the inspection vehicle, General Manoj Mukund बड़े उनके साथ सजी धजी जीप पर परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कप्तान परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कोरोना महामारी के तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है इस सेना दिवस परेड में। एनसीसी कैडेट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भविष्य की तस्वीर है भारतीय सेना की। उनको सामने से गुजरते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। A day of huge prize for the NCC cadets who have come in from all across the country to participate in the Republic Day parade. Also present on the occasion are former chiefs, chiefs of the army staff, members of the media fraternity, defense and military attachés. Contingents are from various regiments of the Indian Army, each with different colors, different mottos, and even different war cries, but there is a common denominator, a unifying force. That is the pledge, the nation first, always and every time. And now, the Chief of the Army Staff will inspect the parade. थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा सेना दिवस परेड का विधिवत निरीक्षण इसको अग्रसर होते हुए थल सेनाध्यक्ष तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। सबसे पहले जिस में परमवीर चक्र अशोक चक्र विजेता और उनके साथ वीर के मैदान पर देश का नाम रोशन करने वाले जाने खिलाड़ी
Commanded by Captain John Sharma and Lieutenant Scott. Followed by the Second Battalion, led by Major Ramakumar and Lieutenant Scott. Command and logistics, led by Professor John and Hans Gunter. Commanded by Lieutenant Scott and Lieutenant भारतीय सेना और हम देखेंगे 40 के दशक की राइफल इनके विरोध में 62 और 65 युद्ध के दौरान वर्गीय हथियार 71 के सेना की गौरवशाली परंपरा का प्रदर्शन विभिन्न ऐतिहासिक निरीक्षण जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आपको भारतीय The parents must from Bhakti has comfort and family. It can be white as a personal design on the different satisfaction that is situation is adorning the new policy the policy president. बेशक पड़ा हूँ धूल में कट के अंत मैदानों में we are safe as long as our men and uniform guard our राष्ट्र की प्रगति में भारतीय सेना ने हमेशा बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। नशा देश की मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के आवाम का है। सेना दिवस परेड नशों में जोश और उत्साह का संचार करते हुए सर्द सुबह की गर्मी देश का जज्बा राष्ट्र को ऊपर ले जाने की कोशिश, यही आज के गांधी के बलिदान है, नेहरू के अरमान है, नेताजी के अमन है। यही तिरंगा है, यही तिरंगा। Chief of the Army Staff has returned to the saluting desk after having... As the Army Chief returns to the saluting desk, Police Commander Mali smartly occupied the Pakistan the parade on Army Day symbolizes uniformity. Today it also showcases how we have evolved over the years in accordance with the changing face of warfare. The parade today is unique as it showcases a gradual change in the Army's equipment, fatigues, and war-waging capabilities. We will see a new and rededicated Army in today's parade. ऐतिहासिक करियप्पा परेड मैदान सेना की सांस्कृतिक विरासत का परिचायक, हमारी अमूल्य धरोहर, जिसके कांटा में सैनिकों की मेहनत की महक रची बसी है। These are the dedicated officers, men of the Indian Army, and the brave lives of the martyrs.
Just! Break! Punch up! Just! Break! Wait! Up! Now the Chief of the Army Staff will present awards to officers, duty commissioned officers and other ranks who have been decorated for... Sena Medal. The Sena Medal is awarded in recognition of such individual acts of exceptional devotion to duty or courage as have special significance to the Army. मेजर अनिल कुमार रांगी 29 राष्ट्रीय राइफल्स द ग्रेनेडियर्स 17 अगस्त 2020 को बारामूला में मेजर अनिल कुमार रांगी ने क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकवादी द्वारा अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद एक आतंकवादी को मार गिराया। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर अनिल कुमार रांगी को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर अनिल कुमार रांगी। मेजर महेंद्र सिंह 42 राष्ट्रीय राइफल्स आर्मी सर्विस कॉर्प 26 जून 2020 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में मेजर महेंद्र सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना भारी गोलाबारी के बीच करीबी लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। इस अदम्य साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर महेंद्र सिंह को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर महेंद्र सिंह। Major Neil Silas Lobo, 55 Rashtriya Rifles, the Armored Corps. On 19th October 2020, while leading a cordon operation in Jammu and Kashmir, Major Neil Silas Lobo crawled forward towards the target in spite of heavy indiscriminate terrorist fire and effectively engaged the fleeing terrorist at a close range. For displaying exceptional tactical acumen and bold courage, Major Neil Silas Lobo is awarded with Sena Medal Gallantry. Major Neil Silas Lobo. Captain Rahul Jha, 1st Battalion, the 1st Gorkha Rifles. On 8 September 2020, in Eastern Ladakh sector, Captain Rahul Jha, while leading his Ghatak platoon, prevented the advance of around hundreds of opponent troops, thereby denying the adversary to reach the dominating height. For displaying utter disregard to his own safety in the face of enemy firing, Captain Rahul Jha is awarded with Sena Medal Gallantry. Captain Rahul Jha. नायक बलजीत कुमार, 1st राष्ट्रीय राइफल्स द महार रेजिमेंट। 7 जून 2020 को जम्मू और कश्मीर में एक कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन के दौरान नायक बलजीत ने स्थिति की गंभीरता को भांपकर अंधाधुंध फायरिंग के बीच अपने सटीक निशाने से एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। इस अतुलनीय वीरता एवं अदम्य साहस के लिए नायक बलजीत को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक बलजीत कुमार। नायक अभिनय पाठक, 44 राष्ट्रीय राइफल्स द राजपूत रेजिमेंट। 17 अप्रैल 2020 को जम्मू और कश्मीर में
एक कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन के दौरान नायक अभिनय पाठक ने भारी गोलीबारी के बीच अपनी उत्कृष्ट युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए करीबी लड़ाई में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। अपने अदम्य साहस एवं शौर्य के लिए नायक अभिनय पाठक को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक अभिनय पाठक। Rifleman Niranjan, 3rd Battalion Rashtriya Rifles, the Jammu and Kashmir Rifles. On 25th September 2020, in Jammu and Kashmir, during a coordinate search operation, Rifleman Niranjan effectively blocked all escape routes of a fleeing terrorist. Later, he neutralized the deadly terrorist in a fierce gunfight. For displaying highest standards of battle and field craft and unflinching courage, Rifleman Niranjan is awarded Sena Medal Gallantry. Rifleman Niranjan. Sepoy Akash Rana, 34th Battalion, the Rashtriya Rifles. On 4th April 2020, in a cordon operation in Jammu and Kashmir, Sepoy Akash Rana contained a fleeing terrorist by bringing down effective fire and neutralized the terrorist in a fierce exchange of fire. For displaying exemplary courage and bravery, Sepoy Akash Rana is awarded Sena Medal Gallantry. Sepoy Akash Rana. Sapper Burla Anjanelu, 1st राष्ट्रीय राइफल्स द कोर ऑफ इंजीनियर्स। 10 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान सैपर बुरला अंजानेलू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बेहद करीबी लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सैपर बुरला अंजानेलू को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सैपर बुरला अंजानेलू। सैपर गुरमुख सिंह, 19 बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। 15 मार्च 2020 को जम्मू और कश्मीर में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान सिपाही गुरमुख सिंह ने भारी गोलीबारी के बीच एक छुपे हुए आतंकवादी को करीबी लड़ाई में मार गिराया। अदम्य साहस और पराक्रम के लिए सिपाही गुरमुख सिंह को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सिपाही गुरमुख सिंह। Colonel Ashutosh Sharma, Batu Sena Medal, 21 Rashtriya Rifles, posthumous. On 2nd May 2020, in Jammu and Kashmir, Colonel Ashutosh Sharma established an effective cordon and in a display of exemplary bravery, he entered the target's house and evacuated 5 civilian hostages under difficult circumstances. In the ensued firefight, he also eliminated 1 foreign terrorist commander in a close quarter battle. Despite being grievously injured, he continued to engage the second terrorist before succumbing to his injuries. For displaying exemplary leadership beyond call of duty and paying the ultimate sacrifice, Colonel Ashutosh Sharma is awarded Batu Sena Medal Gallantry. The award will be received by his brave wife, Mrs. Pallavi Sharma. Mrs. Pallavi Sharma. हवलदार देवेंद्र सिंह, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। 4 अप्रैल 2020 को जम्मू और कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान
हवलदार देवेंद्र सिंह ने आतंकवादियों की गंभीर गोलाबारी के बीच अपने साथी की जान बचाई और अपनी जान की परवाह न करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को करीब से मार गिराया, परंतु स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी वीरता एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए हवलदार देवेंद्र सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता देवी। श्रीमती विनीता देवी। हवलदार बिपुल रॉय 81 माउंटेन ब्रिगेड सिग्नल कंपनी। 15 जून 2020 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान हवलदार बिपुल रॉय को गलवान घाटी में दुश्मन सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को बचाया, लेकिन स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। इस शौर्यपूर्ण सर्वोच्च बलिदान के लिए हवलदार बिपुल रॉय को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रुम्पा रॉय दास। श्रीमती रुम्पा रॉय दास। गनर सुबोध घोष 59 मीडियम रेजिमेंट। 13 नवंबर 2020 को जम्मू और कश्मीर में गनर सुबोध घोष ने दुश्मन के सीज फायर उल्लंघन के दौरान गनर की जिम्मेदारी निभाते हुए दुश्मन के मोर्चों को भारी नुकसान पहुंचाया, परंतु दुश्मन की जवाबी बमबारी में वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए गनर सुबोध घोष को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आनंदिता घोष। श्रीमती आनंदिता घोष। सिपाही कुंदन कुमार ओझा 16 बटालियन द बिहार रेजिमेंट। 15 जून 2020 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान सिपाही कुंदन कुमार ओझा अपने सेक्शन के स्काउट की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने घायल साथियों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में ले गए, परंतु इस कार्रवाई में वे स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। शौर्यपूर्ण कार्रवाई के लिए और अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही कुंदन कुमार ओझा को सेना मेडल वीरता से मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही है उनकी वीर पत्नी श्रीमती नम्रता कुमारी। श्रीमती नम्रता कुमारी। The Chief of the Army Staff will now present unit citations. The Chief of Army Staff citations are awarded to units of all arms and services, including minor units, for outstanding and sustained performance during operational tasks, peacetime, and aid to civil authorities. The commanding officers and their respective Subedar majors will receive the awards. Eastern Command, 6th Battalion, the Rajput Regiment. Colonel P.S. Atwal, Yuddha Seva Medal, Sena Medal. Subedar Major Rukum Singh. Twenty-first Battalion, the Jat Regiment, Colonel Karan Sagar, Sena Medal. Subedar Major Rajesh Kumar. Twenty-second Battalion, the Rajput Regiment, Colonel Neeraj Mishra. Subedar Major Devi Singh.
30th Battalion, the Punjab Regiment, Colonel Mohit Parashar, Subedar Major Honorary Lieutenant Jarnail Singh. Fifth Battalion, the Assam Rifles, Colonel Mohammad Raza Israel, Sena Medal, Subedar Major S.P. Singh. Ninth Battalion, the Assam Rifles, Colonel Surinder Kumar, Subedar Major Pan Singh. Three Engineer Regiment, Colonel S.K. Pillai, Subedar Major S.M. Singh. Central Command, Dogra Scouts, Colonel Dipankar Himalayan, Subedar Major Hemant Kumar. Northern Command, 1st Battalion, the Jammu and Kashmir Light Infantry, Colonel Ravi Kumar Pandey, Subedar Major Daljit Singh. First Battalion, the 1st Gorkha Rifles, Colonel Vinay Kumar, Subedar Major Suren Tamang. Second Battalion, the Jat Regiment, Colonel S.E. Ray, Subedar Major Azad Singh. Second Battalion, the Sikh Light Infantry, Colonel Okendra Singh, Sena Medal, Subedar Major Sahib Singh. Fourth Battalion, the Ladakh Scouts, Colonel Ishwant Singh, Sena Medal, Subedar Major Muhammad Abdullah. Eleventh Battalion, the Garhwal Rifles, Colonel Jagdeep Singh, Subedar Jagmohan Singh. Eighteenth Battalion, the Sikh Light Infantry, Colonel Jagpreet Singh Midha, Subedar Sikandar Singh. Twenty-first Battalion, the Garhwal Rifles, Colonel Manish Som, Subedar Major Ummed Singh.
872 Light Artillery Regiment, Colonel P. Senthil Kumar, Subedar Major Bodke Vishwanath Hiralal. '78 Field Regiment, Colonel Sharat Nair, Subedar Major Ranjit Singh Yadav. '201 Engineer Regiment, Colonel Ratish Raj, Subedar Major Meghnatha Reddy K. First Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Vishal Kumar Singh, Subedar Major Dalbir Singh. Third Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Bhimaiah P.S. Bharata Sena Medal, Subedar Major Subhash Singh. '29th Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Sumita Banerjee, Subedar Major Amrit Lal Sharma. '55th Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Arun Tom Sebastian, Sena Medal, Subedar Major Ramendra Singh. Our heartiest congratulations to the proud awardees. May I now request the Chief of Army Staff to kindly address the parade. सेना दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय सेना के सभी रैंक्स, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, परिवारों, विदेशी दूतावास के प्रतिनिधियों, उपस्थित अतिथिगण और मीडिया जगत के साथियों को तहे दिल से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद। सबसे पहले मैं पुरस्कार विजेताओं और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले यूनिट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। शाबाश। राष्ट्र को और सेना को आपके उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व है। आज की शानदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को भी एक प्रभावशाली परेड के लिए मेरी शाबाशी। वेल डन। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। पिछला वर्ष सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे घटनाक्रम से आप परिचित हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की हाल में ही 14वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई है। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हाल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज फायर वायलेशंस पर काफ़ी हद तक रोक लगी गई, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन्स द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशंस और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम किया है। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक इलाकों में पिछले 2 सालों से प्रगतिशील सुधार हुआ है। इसके चलते सरहद पार से समर्थित आतंकवादी तंजीमों की कोशिश रही है कि विकास की गति पर रोक डालना, और ये साजिश तेज कर दी गई है। गैर स्थानीय लोगों और गरीब मजदूरों को निशाना बनाना इसी साजिश का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार प्रयासों से हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले 1 साल में सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 194 आतंकवादियों को मार गिराया है। देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी प्रोएक्टिव ऑपरेशंस के वजह से सुरक्षा स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। इन ऑपरेशंस के वजह से ज़्यादातर आतंकवादी संगठन आज सीज़फायर में है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती में की कटौती सूरत हालातों का सबूत है। भारत म्यांमार सीमा का सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्व है और असम राइफल्स द्वारा इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सेना और असम राइफल्स राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आकार दे रहे हैं। मौजूदा चुनौतियों और भावी खतरों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण की दिशा में सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन प्रयासों में एक नई तेज़ी आई है। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों, जिसमें IITs भी शामिल है, के साथ मिलकर उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वान ड्रोन्स के क्षेत्रों में काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण के ये प्रयास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बॉर्डर रोड्स, टनल्स
और अंडरग्राउंड स्टोरेज भी शामिल है, इसमें भी निरंतर सुधार हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सेना के आधुनिकीकरण के ये प्रयास देश के आत्मनिर्भर भारत का सपने का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि इंडस्ट्रीज, MSMEs और एकेडमिया के साथ मिलकर हम एक आत्मनिर्भर सेना का विकास कर पाएंगे। राष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारतीय सेना अपने ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म के लिए विश्व भर में मानी जाती है। इसी के कारण सेना के साथ ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी देशों के प्रस्ताव लगातार आते रहते हैं। आज सेना 110 देशों के साथ रक्षा सहयोग में जुड़ी है। वर्ष 2021-22 में मित्रों देशों के 3,300 से ज़्यादा ट्रेनीज को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान पड़ोसी देशों के साथ हमारी आपसी सहयोग और भी बढ़ा है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारतीय सेना का सदा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी हमारी सेना के 5,000 से भी ज़्यादा सैनिक विभिन्न पीस कीपिंग मिशंस में तैनात है, जो देश को एक अलग पहचान दे रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ सेना के ऑपरेशंस का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अभी हाल में ही हमने ब्रिटिश आर्मी के साथ एक्सरसाइज कोंकण शक्ति और बिम्स्टेक राष्ट्रों के साथ पैनिक्स एक्सरसाइज आयोजित किया। ये दोनों एक्सरसाइजेस आज के पैंडेमिक सिनारियो पर आधारित थे। आने वाले समय में ये हमारे संयुक्त प्रयासों में बहुत उपयोगी साबित होंगे। ओलंपिक गेम्स में अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियों के उल्लेख भी मैं आज करना चाहूँगा। इस बार पहले की तुलना में हमने सबसे ज़्यादा 16 खिलाड़ियों ने 6 डिसिप्लिन्स में हिस्सा लिया और देश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलवाया। भारतीय खेल इतिहास में ये एक स्वर्णिम क्षण है। सेना ने महिलाओं को समान अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब विमेन ऑफिसर्स भी सेना में ऊंचे रैंक्स हासिल करके बड़े जिम्मेदारियां निभा सकेंगी। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में इस वर्ष विमेन कैडेट्स को शामिल करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आर्मी एविएशन को भी विमेन पायलट्स के लिए मंजूरी दे दी गई है और इनका ट्रेनिंग जारी है। सेवानिवृत्त सैनिकों के क्लेम्स और पेंशन संबंधित कार्यों को सफल करने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा वेबसाइट को लागू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को निरंतर सपोर्ट देने की दिशा में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स ने पिछले वर्ष लगभग 10,000 बेनिफिशरीज को 40 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। लगभग 6 करोड़ रुपए के पेंशन एरियर्स ESM और NOK को दिए गए। DIV में एक वीरांगना सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये केंद्र वीर नारीज और NOK के क्लेम्स, ग्रीवेंसेस और वेलफेयर के लिए एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म का काम करेगा। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 56 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को ECHS द्वारा क्वालिटी हेल्थ केयर प्रदान किया जा रहा है। इसी को और प्रभावशाली बनाने के लिए हमारी कोशिशें लगातार जारी हैं। मेरा आज का संबोधन भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के योगदान और सपोर्ट की सराहना किए बिना अधूरा रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से
ऑपरेशंस को अंजाम देकर युद्ध क्षेत्र में देश को विजयी बनाएगी। इसी उद्देश्य से थिएटराइजेशन पर काम एक समयबद्ध प्लान के अनुसार चल रहा है। इससे संबंधित आने वाले समय में कई ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कोविड महामारी आज भी एक बड़ी चुनौती है। फोर्स प्रिजर्वेशन के जो कदम हमने 2 साल पहले उठाए थे, उसी के वजह से न केवल हम अपने आप को बचा सके, बल्कि सीमाओं पर आए खतरों का भी मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अभी भी फोर्स प्रिजर्वेशन का उतना ही महत्व है। हमें अपने अनुशासन और सजगता से इस चुनौती को एक बार फिर हराना है। स्वाधीनता के 75 वर्ष में आज सेना दिवस पर भारतीय सेना एक बार फिर स्वयं को नाम, नमक और निशान के प्रति समर्पित करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की रक्षा में भारतीय सेना सदैव अग्रसर रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। Kutrika! 61 cavalry! Agape! Parade! Daine chalega! Daine! March! Bicep! That's भारत का सम्मान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। चाहे कोई धन निर्धन हो, चाहे शहर या वन निर्जन हो, इससे बढ़कर, इससे उत्तम और कोई सम्मान नहीं। मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। Ladies and gentlemen, today's parade is unique as we have on display vintage weapons and equipment used by the Indian Army from independence till date. Also are the myriad hues of uniform donned over the last 7 decades, from Sam Browns to olive greens, also on display. The transition of weapons, systems and equipment from the 1940s to the present day contemporary modern equipment made in India.
Thank you.
Thank you.
सूबेदार मेजर मलकीत सिंह लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में जन्म लिया माटी का कर्ज चुकाएंगे सरहद पर जब भी जंग छिड़े जान दे कर फर्ज निभाएंगे।
जान गवा देंगे, कुर्बानी ऐसी दे जाएंगे, हम अमर शहीद कहलाएंगे। सरफरोशी का ये जुनून हम में है, आबाद रखे तुझे देश मेरे। हर मुकाम पर हम सिर्फ जीत लिखे, गाथा हम वीरों की अमर रहे। इस वतन में हमने जन्म लिया, माटी का कर्ज चुकाएंगे, सरहद पर जब भी जंग छिड़े, जान दे कर फर्ज निभाएंगे। कर रहे हैं भारतीय सेना भारतीय सेना के और शूरवीरों के प्रति समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की नई इबारत लिखी। पराक्रम और बलिदान की गौरव गाथा। अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बाद 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारत आजाद हुआ और भारतीय सेना ने मातृभूमि की रक्षा और तिरंगे का मान बरकरार रखने के लिए ली थी शपथ। पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायली लश्करों को श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए भेजा। कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी फौजियों ने मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला शहरों में दिल दहलाने वाली घटनाओं को अंजाम दिया। कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीरी आवाम की सुरक्षा की खातिर 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर हमेशा के लिए बन गया भारत का एक अटूट अंग। कश्मीर के बिगड़ते हुए हालातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने एक पल भी न गंवाया और मात्र 24 घंटों के अंदर 1/6 की पूरी बटालियन को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया। सर, सिग्नल प्लेटून वाला जहाज तो जम्मू में ही इमरजेंसी लैंडिंग कर गया है। हमें तो यह भी नहीं पता कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर कबालियों ने कहीं कब्जा न कर लिया हो। सुना है हजारों की गिनती में है ये घुसपैठिए। डोंट वरी, हजारों हो या लाखों, हमारा एक एक जवान 1.25 लाख के बराबर है और श्रीनगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। फिक्र ना करो, लैंड तो हमारा जहाज श्रीनगर में ही होगा।
श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय की योजना के मुताबिक एक प्लटून को पीछे छोड़कर 1 सिख की चार्ली कंपनी हजारों कबायलियों को श्रीनगर से दूर ही रोकने के लिए निकल पड़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की रणनीतिक सूझबूझ ने हमलावरों को शहर से दूर ही रोककर श्रीनगर को तो बचा लिया, लेकिन इसके बदले उनको अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। कबायली फिर योजना बदलकर बडगाम के रास्ते श्रीनगर की ओर बढ़े। दूसरे हमले में भी 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा ने एक हाथ घायल होने के बावजूद और सिर्फ एक कंपनी के साथ 700 से अधिक पाकिस्तानियों को श्रीनगर हवाई अड्डे तक पहुंचने से रोके रखा। इस बैटल ऑफ बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा साहस और शौर्य से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इस बहादुरी के लिए उन्हें भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद भारतीय कमांडरों की इस पहली जीत ने साबित कर दिखाया कि देश की अखंडता भारतीय सेना के सुरक्षित हाथों में है। भारतीय सेना के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ 15 जनवरी 1949 का वो दिन जब लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा बने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ। हम इसी दिन को आज आर्मी डे के नाम से मना रहे हैं। उन्नीस 1960 का दशक भारतीय सेना के लिए चुनौतियों से भरा था। इस दौरान सेना ने 3 सरहदों पर लड़ाइयां लड़कर भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा। वर्ष 1962 में भारतीय सेना ने कड़ी परिस्थितियों में चीन के साथ युद्ध लड़ते हुए रेजांगला में सेना के 120 सैनिकों ने अपने से 10 गुना ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा तथा आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ते हुए बहादुरी और सैन्य धर्म की अद्भुत मिसाल कायम की। 1965 में पाकिस्तान ने विदेशी पैटर्न टैंकों और F-86 लड़ाकू विमानों के दम पर ऑपरेशन जिब्राल्टर में हजारों लश्कर भेजकर एक बार फिर कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारतीय सेना का पंजाब सेक्टर से शुरू हुआ जवाबी हमला सियालकोट, लाहौर और कसूर के लिए खतरा बन गया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने हाजीपीर, असल उत्तर, फिलोरा, बरकी और डोगराई जैसे स्थानों पर निर्णायक जीत हासिल की। दुश्मन के पास आधुनिक अमेरिकी हथियारों के बावजूद भारतीय सेना ने यह साबित कर दिखाया कि लड़ाई केवल हथियारों से नहीं बल्कि हथियार चलाने वालों के जोश, जज्बे और जुनून से जीती जाती है। भारतीय सेना के सीनियर कमांडर्स की सामरिक दक्षता, युद्ध कौशलता तथा सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान के द्वारा ये शानदार जीत हासिल हुई। 1971 में बांग्लादेश की आजादी का आंदोलन पूरे चरम पर था। पाकिस्तान ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। तब तकरीबन 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारत के पूर्वी राज्यों में आकर शरण ली।
भारत ने उन मजलूम बेसहारा लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और 3 दिसंबर को उसने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर हमले कर दिए। दोनों सरहदों पर जंग छिड़ी। पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश को आजाद कराना था। इसलिए ऑपरेशन कैक्टस लिली के तहत भारतीय सेना 3 तरफ से दुश्मन को पछाड़ती ढाका की ओर तेजी से बढ़ रही थी। मेघना ब्रिज इज हेवीली फोर्टिफाइड। टेक ओवर में काफी समय लग सकता है और ऊपर से हाई कैजुअलिटीज होने की भी पॉसिबिलिटी है। यह नदी हमें ढाका तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर हम इस मेघना नदी को ब्रिज से पार नहीं कर सकते तो हम अपना ब्रिज बना लेंगे, हेली ब्रिज। मेघना हेली ब्रिज ऑपरेशन के अधीन 36 घंटों के अंदर 110 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज उड़ाकर भारतीय सेना ने पूरी ब्रिगेड को मेघना नदी के उस पार पहुंचाया। यह भारतीय सेना का आज तक का सबसे बड़ा हेलीकॉन ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तानी फौज हिली, जमालपुर, खुलना और सिलहट को भारतीय सेना से बचाने में व्यस्त थी, वहीं भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों के द्वारा टंगेल में सफलतापूर्वक किए गए पैराड्रॉपिंग ने पाकिस्तानियों का हौसला तोड़ दिया। जहां एक तरफ भारतीय सेना पूर्वी मोर्चे पर लड़ रही थी, वहीं पश्चिमी सरहद पर भी पाकिस्तान के साथ घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। पर दुश्मन ये नहीं जानता था कि भारतीय सेना दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ने में और जीत हासिल करने में पूरी तरह से समर्थ है। लोंगेवाला की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान को एक के बाद एक शिकस्त मिल रही थी। पाकिस्तान श्रीनगर राष्ट्र मार्ग पर कब्जा कर जम्मू कश्मीर का पूरे भारत से संपर्क तोड़ना चाहता था, पर भारतीय सेना ने 4 दिसंबर को शकरगढ़ बल्ज पर पहले ही हमला बोलकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक और भीषण लड़ाई, बैटल ऑफ बसंतर, भारतीय सैनिकों द्वारा दुश्मन के खिलाफ। यह 17 पुना हॉर्स ब्रावो स्क्वाड्रन का टैंक, जिसके टैंक कमांडर है 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। विकट परिस्थितियों में भारतीय सेना का यह जाबाज सैनिक दुश्मन के घर में घुसकर पाकिस्तानी टैंकों के खिलाफ निरंतर आग उगलता और एक के बाद एक पाकिस्तानी बैटन टैंकों को तबाह करता जा रहा था। इसी बीच एक गोला 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक को लगा और टैंक में आग लग गई। Bravo 4, move back. I say again, move back. Bravo 4, my main gun is still working. I will get these. ऐसी आपात स्थिति में भी देश का ये सच्चा सपूत आखिरी सांस तक लड़ता रहा और इस तरह लिखी गई 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल द्वारा पाकिस्तानी टैंकों की बर्बादी की दास्तान बैटल ऑफ बसंतर बना पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान। भारतीय सेना की लाइटनिंग कैंपेन ने पाकिस्तानी फौज को 13 दिनों के भीतर अपने घुटनों पर ला दिया और बांग्लादेश में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। हमारी सेना का फूलों की वर्षा से अभिनंदन किया गया। भारतीय सेना की विजय ने ही वो नींव रखी जिस पर एक नए राष्ट्र
बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 की जंग जीतने के बाद भी भारतीय सेना ने अनेकों चुनौतियों का सामना किया। वर्ष 1984 पाकिस्तानी फौज सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की फिराक में थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत 13 अप्रैल 1984 को दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया। 20,500 फुट की ऊंचाई वाली बर्फीली पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर देश की उत्तरी सरहद को सुरक्षित किया। सूबेदार मेजर बाना सिंह की शूरवीरता और दिलेरी को देखते हुए कैद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट रखा गया और उन्हें भारत के सर्वोच्चतम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मगर पाकिस्तान अपने कुटिल मंसूबे से बाज नहीं आया और 1999 में एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों ने वेश बदलकर कश्मीर के कारगिल जिले की चोटियों पर धोखे से कब्जा कर लिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के तहत घुसपैठ करते पाकिस्तानियों को द्रास कारगिल की दुर्गम चोटियों से खदेड़ना शुरू कर दिया। परिस्थितियां विपरीत थी, मौसम प्रतिकूल, पर देश प्रेम की वो ज्वाला जो भारतीय सेना के अंदर थी वह हर तूफान को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। भारतीय सैनिकों के असंख्य बलिदानों और जूनियर लीडरशिप के प्रभावी प्रदर्शन के फलस्वरूप 26 जुलाई 1999 को एक बार फिर से पाकिस्तान को करारी हार मिली। देश की अखंडता का मूल्य वीर जवानों ने अपने रक्त से चुकाया। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उच्च परंपरा का निर्वहन किया, जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करके सीमा के उस तरफ आतंकवादी शिविरों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। राष्ट्रहित की कोई सीमा नहीं होती को अंजाम देते हुए नियंत्रण रेखा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर देशभक्ति और हौसले का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब दुश्मन दोबारा कोई हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि भारतीय सेना कहीं भी किसी भी वक्त प्रहार कर सकती है। जब अस्मिता की बात हो, जब राष्ट्र पर आघात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम दुश्मन पे मारेंगे, हम खुश के मारेंगे, हम खुश के मारेंगे। (1947) की भारतीय सेना जब अस्मिता की बात हो, जब राष्ट्र पर आघात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम दुश्मन पे मारेंगे, हम खुश के मारेंगे, हम खुश के मारेंगे हम।
कर सकती है। है कि भारतीय सेना कहीं भी किसी भी वक्त प्रहार कर सकती है। प्रहार है कि भारतीय सेना कहीं भी किसी भी वक्त प्रहार कर सकती है। जब अस्मिता की बात हो, जब राष्ट्र पर आघात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम दुश्मन पे मारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। (1947) की भारतीय सेना विकसित होकर आज पश्चिमी और उत्तरी सरहदों पर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लड़ाई लड़ने में सक्षम है। भारतीय सेना का अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हर दिन नई से नई तकनीक आत्मसात कर रही है। लेकिन ये गंतव्य नहीं है। आधुनिकीकरण, सशस्त्रीकरण और आत्मनिर्भरता की यात्रा अभी जारी है। In stride with the future. Kindly remain seated till the departure of the chief guest. Your exit will be controlled. Kindly remain seated. Due to COVID protocol, there is no central fee. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत के हम रखवाले हैं, सीमा पे भी हैं और दिल में भी हम। इस वर्दी के मतवाले हैं, दुश्मन को हो ना कोई भरम। हर रंग में, हर जंग में, जौहर के नए नए ढंग में जीतेंगे हम इस मिट्टी की हमको कसम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
खात्मा, चाहे दिन हो या हो रात, वो एक हो या हो वो कायनात। The Indian Army has a rich and glorious past that dates back to ancient times. It is now evolved to be a modern, world-class organization. Today's parade gave us a small glimpse into the